Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'll begin my session. Hello and welcome everyone. Thank you for taking the time to join us today. My name is Aisha Mahmood and I am the project coordinator at Association of Muslim Professionals, abbreviated as AMP. To begin the session, I'll first introduce AMP briefly to you all. AMP is a non-profit organization with an on-ground presence in more than 140 active chapters spread across 26 states in 20 countries, with almost 6,000 active members. AMP mainly works in 3 domains: education, employment, and empowerment. AMP has many achievements to its credit under its main flagship projects and keeps adding new ones as the need arises. SDP, or School Development Program, has sessions for all stakeholders in the education field. AC, or Employment Assistance Cell, launched in 2014, conducts job fairs and job drives, and it also conducts EGPs in colleges. So far, AMP has conducted more than 40 job fairs and around 250 job drives, bringing job seekers and corporates together and facilitating the placement of more than 15,000 needy candidates. It regularly runs career guidance seminars at more than 50 different locations in India, benefiting more than 10,000 students every month. AMP has supported more than 500 needy and deserving students by funding their higher education. It has helped more than 500 orphans with basic education. It has supported more than 200 poor and unemployed with its self-employment schemes in the past 5 years. AMP is in partnership with around 50 government and non-government organizations. Some new digital initiatives by AMP are as follows. First is indiazakat.com. It is India's first online zakat crowdfunding platform and was launched in April 2020 to liberate Indian Muslims from poverty and to set the individual on the path of self-sustenance. Second one, the indiamentors.com or TIM is an online mentoring platform that is free and open to all. It envisions a fully educated and empowered student community where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness and guidance. The third one, empowerjob.com, is an online portal started in October 2020, which endeavors to connect the right talent to the right opportunity. Talking about the reach of AMP, it is also present in the Middle East with chapters in Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, and UAE. And active volunteers are present in Singapore, Malaysia, South Africa, Oman, Bahrain, UK, US, and Canada. Recently, it has been registered in the US, UK, and Australia as well. Lastly, I would like to emphasize that more than anything else, it is the rope of Islam that the members of AMP hold on to while treading the strenuous path of empowerment of the Indian Muslim community in particular and the society as a whole in general that has been responsible for the phenomenal growth that AMP has achieved in just over a decade. Now, without delay, I would request Mr. Ahsanullah sir to kindly introduce our speaker for today, Dr. Aditya Srinivas sir. Now I am heartily welcome Dr. V. Aditya Srinivas. Thank you, sir.
Dr. V. Aditya Srinivas, his academics, BBA Finance distinctions, MBA Gold Medalist, D Literature USA, PhD Economics, MDP, IIM Ahmedabad, CWM ISO 9001-2008, lead auditor. He is capital market and financial market professional with a specialization in macroeconomics and fundamental research. 17 years of corporate experience in the field of financial services. Working as a chief operating officer of BSC Broker Forum, given an additional responsibility of chief economist of Bombay Stock Exchange Brokers Forum. Dr. Aditya has referred to be appointed as an advisor by a member of parliament to Prime Minister Dr. Manmohan Singh and to current Prime Minister Shri Narendra Modi ji also. He is the editor of monthly magazine Forum Views also. I am requesting Dr. V. Aditya Srinivas. Now over to you, sir. Thank you very much, Ahsanullah Saab. Thank you so much for your kind introduction. I have been associated with AMP for quite some time. In fact, I think before 5-6 months, we had done around 10 to 15 sessions also for our brothers and sisters, for giving them knowledge about financial markets. Entire series we had done. Iftikhar sir was kind enough to organize that whole thing. And Irdish sir had also called me personally to thank me for that initiative, what we had done for our people. So I'm very happy to be a part of this organization. In fact, I'm a member of AMP. My own chartered accountant, Mr. Samir Khan, had introduced me to this. And I have been doing a lot of activities, even from the charitable perspective also. In fact, in Surat, Gujarat, there is in my nearby house, there is a Yatim Khana, which I am basically associated for last 5 years, where the more than 100 orphans children are there. They study from senior KG to 10th standard, and I regularly fund them with whatever little support I can do for them. So basically, I am this core activity of helping others has always been my focus area, and I really appreciate the work that has been done by AMP. And I am always available for any kind of support you need as far as education theme is concerned. You can organize as many sessions of mine as possible so that more and more people can get knowledge and can benefit and become self-employable. So once again, I really thank you for this opportunity given to me. Friends, today's theme is very interesting. It is on our budget. I have a small PPT to share. So I will just share the screen. One humble thing to ask, which language is more comfortable, friends? If you say, I'll explain it in Hindi. If you say in English, so whatever you are comfortable. The objective is you should be able to get good knowledge. तो इसारुल्लाह साहब कौन सा लैंग्वेज यूज करें? हिंदी ज्यादा बेटर रहेगा या फिर इंग्लिश? आप जो बोलो, मुझे दोनों में कंफर्ट है. दोनों मिक्स कीजिए सर. अच्छा हाँ ठीक है, आई थिंक वही बेटर रहेगा. राइट ठीक है. यस. तो फ्रेंड्स, बेसिकली जैसे हर साल 1 फरवरी को अपना बजट आता है, और ये जब भी ये एक्टिविटी होती है तो स्टॉक मार्केट्स काफी ऊपर नीचे होते हैं और बहुत सारी जगहों पे एक चहल पहल होती है. हर इंसान को ये उम्मीद रहती है कि भाई बजट में हमारे लिए क्या आएगा. तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग प्रोविजंस बजट के समझते हैं. जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे मैंने मोस्ट ऑफ तो लिस्ट डाउन किए हैं, और उसको मैं सिंपल हिंदी में आपको समझाता हूँ कि भाई ये पॉइंट का क्या मीनिंग है. सी बजट बेसिकली, अगर आप बजट की देखो ना फ्रेंड्स, तो मार्केट, स्टॉक मार्केट से सिंस मैं जुड़ा हूं, तो मैं जस्ट आपको एक सिंपल एक्सप्लेन करूं कि 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर गया था. तो एक ऐसा क्या आया बजट में कि भाई मार्केट को अच्छा लगा और 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर गया. सी ये जो बजट था ना फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से इसलिए था कि बजट में है ना कैपेक्स जिसे हम कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको बहुत सारा वेटेज दिया गया है. कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीबन 7 लाख करोड़ रुपए बेसिकली सरकार ने सोचे हैं कि भाई हम प्राइमरीली इसको स्पेंड करेंगे. करेक्ट. तो ये मेन अपना ऑब्जेक्टिव था बजट का. सो दैट इज समथिंग वेरी क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट. प्लस फिस्कल डेफिसिट यानी गवर्नमेंट का जो इनकम और एक्सपेंस होता है वो दोनों के बीच का गैप, तो उसको भी कम करने की कोशिश की गई है. जैसे आप देखोगे तो 2025-26 तक गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि भाई फिस्कल डेफिसिट को घटा के 4.5% ले आएंगे. करंटली अपना फिस्कल डेफिसिट 6.9% है, जो काफी हाई है, और ये आगे चल के 22-23 में 6.4% होगा. फिस्कल डेफिसिट, जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस है. अब गवर्नमेंट का इनकम क्या है?
तो भाई जो आप और मैंने जो टैक्सेस पे किए, और गवर्नमेंट का एक्सपेंस ये होता है कि जो गवर्नमेंट पैसे स्पेंड करती है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिफेंस, हेल्थ केयर, मतलब वगैरह वगैरह हर सेक्टर पे जो पैसा खर्चती है। अब इसमें जो जो इंटरनेशनल फ्रेंड्स, एक जो ये है कि भाई इंटरनेशनली इसका क्या स्टैंडर्ड है, तो करीबन 3.5% पे अगर आपका फिस्कल डेफिसिट होता है तो उसको फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत अच्छा मानते हैं। और आदित्य जी, आपकी, हाँ सर, आदित्य सॉरी आपको डिस्टर्ब, आप नहीं अपना नहीं, प्रेजेंटेशन मोड में कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, 1 मिनट हाँ, अभी को, या नीचे, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, यस यस, थोड़ा ओके, थैंक यू वेरी मच सर। श्योर श्योर श्योर। सो बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है ना कि भाई बेसिकली जो ये फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो 3.5 से 4% हो, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स उसको काफी वेटेज देते हैं, उनको वो काफी अच्छा लगता है कि भाई गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है अपना पैसा मैनेज करने में। जबकि कोरोना वायरस जब फर्स्ट वेव आया था तो गवर्नमेंट को 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस करना पड़ा था, बराबर है, 20 लाख करोड़ का पैकेज। तो ये पैकेज जब हमने अनाउंस किया, इसकी वजह से काफी हमारा जो खर्चा बढ़ा, बट सामने इनकम नहीं आई, बिकॉज 2020 के साल में तो पूरा इकोनॉमी में लॉकडाउन था, तो गवर्नमेंट की इनकम ही नहीं हो पाई, बिकॉज एक्टिविटी नहीं हुई तो टैक्स कहां से आएगा, जीएसटी 2-3 महीने के लिए तो कंप्लीट जीरो था। सो इसके वजह से आप देखोगे तो फिस्कल डेफिसिट हमारा ब्रॉड हो गया। फिस्कल डेफिसिट जितना कम होता है फ्रेंड्स, उतना फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है, बिकॉज उनको लगता है कि भाई हमारी इकोनॉमी एफिशिएंट हाथों में है। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट के फ्रंट पे गवर्नमेंट ने ये जो कमिटमेंट दिखाया है कि भाई 25-26 तक हमारा फिस्कल डेफिसिट काफी कंट्रोल में आ जाएगा, और हो सकता है उससे जल्दी भी आ जाए, बिकॉज इकोनॉमी में जिस ढंग से रिकवरी दिख रही है, एटलीस्ट आप मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर देखें तो जीडीपी अपना जो था वो -6.6 पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो पहले 7.3 कहा जाता था कि भाई -7.3 होगा, और इस साल में तो एक प्रोजेक्शन है कि इकोनॉमी करीबन 9% से ग्रो करेगी। तो फिस्कल प्रूडेंस जिसे हम कहते हैं, उस फ्रंट पे गवर्नमेंट ने रिलेटिवली अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया है, एफर्ट्स लिए हैं। सो इसके लिए ये एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट था बजट का। सेकेंड, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अच्छा खासा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि भाई आप पैसे खर्चो लेकिन स्टेट्स को डेवलप करो। जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए 4% फिस्कल डेफिसिट तक अलाउ किया गया है कि भाई आप 4% भी अगर आपका एक्सपेंस इनकम से ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लस उनको 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए गए हैं अबव एंड नॉर्मल, जो वो नॉर्मल उनको एलोकेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके अलावा भी वो एडिशनल लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 1 ट्रिलियन रुपीस का, वो भी 2022-23 में स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है कि भाई आप इसको खर्चा करिए ताकि मोर एंड मोर जॉब्स क्रिएट हो और बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे हमें डेवलपमेंट दिखे। तो स्टेट को ये सपोर्ट अच्छा खासा स्टेट गवर्नमेंट्स को एक एक्सटेंड किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था बजट का। यस, ये एक इंटरेस्टिंग था फ्रेंड्स कि भाई डिजिटल करेंसी में क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी में क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि क्रिप्टो करेंसी में गवर्नमेंट ने सी एक चीज तो है कि जैसे वर्ल्ड ओवर बिटकॉइन है, इथर कॉइन है, ये जो कई सरकारें कहती है कि भाई हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, टेस्ला कहता है कि भाई हम बिटकॉइन दोगे तो भी गाड़ी दे देंगे। तो फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होगा। बजट में भी और बजट के बाद भी फाइनेंस सेक्रेटरी ने बहुत ही क्लियर किया है कि इंडिया में अपना जो रूपी है, तो 2022-23 में खुद आरबीआई बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए डिजिटल सेंट्रली बैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। और उसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास 100 डिजिटल यूनिट होंगे तो इट इज इक्वल टू 100 रुपी। यानी आप कहीं गए तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप 100 रुपी का नोट दो या 100 डिजिटल यूनिट आप उसको ट्रांसफर कर दो, इट विल बी वन एंड द सेम। बट गवर्नमेंट हैज मेड इट वेरी क्लियर कि इंडिया में इसके अलावा कोई भी और डिजिटल will not be considered as currency. So ये एक चैप्टर जो क्रिप्टो करेंसी का था वो यहाँ पे बहुत क्लियरली लीगली इसको शट कर दिया गया है। अब बचा क्या? अब ये है कि भाई क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इसको एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया गया है, एक कमोडिटी की तरह, और बेसिकली इस पे 30% टैक्स इंप्लीमेंट किया गया है। मतलब बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि आपको क्रिप्टो करेंसी में आपने ट्रेडिंग की, आपने बेसिकली ट्रेडिंग की, आपने इसमें बेसिकली स्पेकुलेशन किया और आपने प्रॉफिट बनाया, तो सिंपल सा पॉइंट है कि आपको इसके ऊपर है ना 30% सीधे का सीधा टैक्स भरना है। यानी अगर आपका प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए है तो आपको 30 लाख रुपीस टैक्स भर देने हैं। ये सिंपल पॉइंट है। सेकंड, अगर आपको इसमें लॉस होती है तो ये लॉस को आप किसी गेन के साथ ऑफसेट नहीं कर सकेंगे।
प्लस एक ट्रैक रखने के लिए कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग ये सब चीजें ना हो, तो इसलिए जो भी ट्रांसफर करोगे एक्सचेंज को, उस पे या एक्सचेंज जो क्रिप्टो करेंसी, सो कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है, वो आपके साथ जो भी डील करेंगे उस पे 1% वो टीडीएस काटेंगे। तो इससे क्या होगा कि मनी ट्रेल मिलेगा कि भाई ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, बिकॉज टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। सो डिजिटल करेंसी में ये एक इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट ने की है कि इसको टैक्स कर दिया 30% पे। एक क्लैरिटी आ गई कि भाई इंडिया में तो जो आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा वही वैलिड होगी, उसके अलावा कोई वैलिड नहीं है। और ये जो सब है कि बिटकॉइन, इथर कॉइन या कोई भी दूसरा डोजे कॉइन, ये सब जो वर्ड्स हम सुनते हैं, ये सब में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इट इज अ असेट क्लास, इट इज नॉट अ करेंसी। और इस पे आपको जो भी मुनाफा होता है सीधा फ्लैट 30% टैक्स दे देना है। अगर हम फ्रेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे काफी जोर दिया गया है, और इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बजट काफी अच्छा लगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की बात थी उस पर काफी ध्यान दिया गया है कि भाई कैपेक्स 7 लाख करोड़ का टोटल अलग अलग उसमें एक्सपेंस करने की बात की गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया गया है। इसमें 2022 में 5G स्पेक्ट्रम के ऑप्शंस होंगे, तो धीरे धीरे हम इंडिया भी 5G टेक्नोलॉजी में इट विल बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेयर्स इन द ग्लोबल लेवल। दूसरा जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की गई है कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है PLI स्कीम, तो उसमें ये 5G लेड डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, नेटवर्किंग को ऐड कर दिया गया है ताकि कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर सके। और बेसिकली जो 5G स्कीम है उसके अंदर वो अपना पैसा अपना इंसेंटिव उनको मिले, प्लस जॉब क्रिएशन में मदद हो। तो यहाँ पे एक ये भी कहा है कि भाई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में अगले 5 साल में करीबन 60 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज खड़ी होगी। 60 लाख नई जॉब अपॉर्चुनिटीज खड़े होने का गवर्नमेंट एक बेसिकली प्रोजेक्शन कर रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि 60 लाख बहुत छोटा फिगर है। इंडिया में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, और अगर हमें सच में 9% जीडीपी पे कंटिन्यूअसली ग्रो करना है तो इन दैट केस वी हैव टू क्रिएट मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अगले 20 साल के लिए हर साल 1.5 करोड़ जॉब्स खड़े करने हैं, तब जाके हम बेसिकली ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का थीम है कि भाई यंग पॉपुलेशन हमारे वहां बहुत है, इसलिए हम सब फॉरेन कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई हमारा ग्रोथ अच्छा होगा। तो ये कब पॉसिबल है? जब हम यूथ को जॉब्स दे सके, अदरवाइज ये पूरी चीज बैकफायर होकर अपने पे वापस आएगी। सो ये एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि भाई बेसिकली जो एक रूरल एरियाज में ये जो एक है कि भाई ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाए 2025 तक, ये फ्रेंड्स बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन ला सकता है अगर इसे सच में ढंग से किया जाए। बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री विच हैज 6 लाख विलेजेस, अपने वहां 6 लाख गांव है, दूर दराज के एरियाज है। तो अगर सच में इन सब में ऑप्टिकल फाइबर को बिछा दिया जाए तो जो डेटा ट्रांसमिशन है, यानी इंटरनेट है, कनेक्टिविटी है, इससे जो बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज, और जो ग्रामीण स्टूडेंट्स है स्पेशली उनको जो एक्सेस इंफॉर्मेशन का रह जाता है, जो उनको अपडेशन नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ पुअर नेटवर्क, इंटीरियर्स है तो भाई कई जगह तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। तो इन सब चीजों में ये एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश होगी। और प्लस इससे बेसिकली क्या होगा कि जो स्टार्टअप्स आते हैं उनको भी ये मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हमें गांव में जाके भी वी कैन लॉन्च लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। फ्रेंड्स मैं खुद कई गांव के इंटीरियर्स में जाता हूँ नॉर्मली ऑन वीकेंड्स टू अंडरस्टैंड रूरल इकोनॉमी, वन सेकेंड टू गेज कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन एट ग्रास रूट लेवल। तो मैंने एक चीज जरूर देखी है कि भाई रूरल में अगर आप कोई चीज लॉन्च करते हो तो वहां पे एक चीज है कि कंपटीशन नहीं होता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा भी सही है तो आपके सक्सेस जाने के चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये अगर ये ऑप्टिकल फाइबर रूरल एरियाज में ढंग से अगर ये किया जाए तो इससे बहुत सारे रूरल फोकस्ड स्टार्टअप्स को बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। और इसमें जो एक्सपेंडिचर होगा ये पूरा सेटअप करने में जाहिर सी बात है कि काफी पैसे खर्च होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो इससे रूरल एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी खड़ी होगी। सो दैट इज वाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर का है जिसपे फोकस किया गया है।
चौथा अगर हम समझे कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग, नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जिसमें जो अपना ये प्राइम मिनिस्टर का आवास योजना है उसमें 48,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं कि भाई 80 लाख घर रूरल इंडिया में बनाया जाए। सी फ्रेंड्स, मैंने एक चीज समझी है कि भाई अगर हमें सच में इंडिया को एक सुपर इकोनॉमिक पावर की तरफ ले जाना है तो ग्रास रूट लेवल को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिसमें बेसिकली घर आ गया, कनेक्टिविटी आ गई इन टर्म्स ऑफ डिजिटल, इन सब चीजों से रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज है, इनसे ही क्या होगा कि भाई ये बनाने में एक तो जॉब्स क्रिएट होगी, वहां के लोकल लोगों को जॉब मिलेगी, प्लस उनकी इनकम बढ़ेगी, तो इकोनॉमी में डिमांड और कंजम्पशन भी बढ़ेगा। सो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें बहुत अच्छे से समझ के प्राइमरीली करना है। प्लस अगर आप देखेंगे तो जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट होगा उसमें जैसे मैंने कहा कि 19,000 करोड़ रुपए स्पेंड होने वाले हैं और उससे करीबन 60 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकती है। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गवर्नमेंट ने दिखाया है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए हमें स्पेंडिंग करना है, बिकॉज स्पेंडिंग से ही इकोनॉमी में डिमांड और कंजम्पशन क्रिएट होती है और इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका जीडीपी पॉजिटिव रेट पे आता है। ट्रांसपोर्टेशन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, बिकॉज आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पूरा इंडिया बेसिकली कनेक्टेड हो तो ही आप कहीं भी बिजनेस अच्छे से कर सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो। तो जैसे 400 एफिशिएंट ट्रेन अगले 3 साल में 400 बेसिकली नई रेलगाड़ी जो बेसिकली एफिशिएंट एनर्जी, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि भाई सोलार से शायद कहीं कनेक्टेड होगी, तो ये प्राइमरीली इससे बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट होगी और ये मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा पुश देगा। फ्रेंड्स, हमें मैन्युफैक्चरिंग में जो एक इम्पीटस मिला है पिछले कुछ सालों में कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया इज रिलेटिवली प्रोग्रेसिव, मैं ये नहीं कह सकता कि हमने बहुत प्रोग्रेस कर दिया, बट यस रिलेटिवली हमने अच्छा प्रोग्रेस किया है पहले से। तो यहाँ पे ये जो 400 नई ट्रेन हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो इससे भी अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज खड़ी होगी, प्लस इससे जो एफिशिएंट अगर हम इसे सोलर एनर्जी ऑल्टरनेटिव सोर्स पे चला सके एज कंपेयर टू कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगेन दैट विल रियली हेल्प इंडिया टू अचीव न्यू लैंडमार्क्स। प्लस यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि भाई रोड नेटवर्क, इंडिया में ट्रेन तो ठीक है कि एक सेगमेंट ट्रेन से ट्रैवल करता है, बट आज भी मोस्ट ऑफ द पीपल जो दूर दराज में जाते हैं वो बेसिकली रोड जर्नी ज्यादा प्रेफर करते हैं और वो ज्यादा यूज भी होती है। तो वहां पे जो हमारे हाईवेज है, तो हाईवेज में करीबन 25,000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है 2022-23 में। ऑब्वियस है कि ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव टारगेट है, हम कितना इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हम ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली इससे बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिलेगी, कनेक्टिविटी बहुत हद तक इंप्रूव होगी, और प्लस इसमें जो कैपेक्स एक्सपेंडिचर कहा गया है वो 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा फ्रेंड्स वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि भाई हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से जो जब हाईवे बनता है, रोड्स बनते हैं, तो वहां के जो लोकल्स होते हैं उन्हें वो कंस्ट्रक्शन काम में जॉब्स मिलता है, प्लस जो लेबरर्स होते हैं उनको जॉब्स मिलेगी। सो ये जो बेसिकली एक ट्रांसपोर्टेशन जो एक कनेक्टिविटी का पार्ट है, इसमें भी हमारी गवर्नमेंट ने ये बजट में एक अच्छा खासा वो मैं कह सकता हूँ कि भाई इनिशिएटिव दिखाया है और इससे ओवरऑल इकोनॉमी में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो ये एक पॉइंट हमें खास ध्यान में रख के चलना है। दिस विल रियली हेल्प अवर इकोनॉमी टू ग्रो वेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो इसमें आया है भाई बजट में कि भाई डेटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, आज आप देखते हैं कि हम मोबाइल में जो 2 GB डेटा दिन का कहाँ यूज कर देते पता नहीं चलता है। तो जो डेटा मुकेश अंबानी साहब ने भी उनकी एक AGM में कहा था कि डेटा इज द न्यू गोल्ड, यानी डेटा जो है इंडिया में जो डेटा कंज्यूम होगा वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, और ये सब डेटा को मैनेज करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ डेटा सेंटर्स, तो जिसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया गया है। इससे बेनिफिट ये होगा कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में FDI लाना और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू इसे रेस करना, ये रिलेटिवली एक इजी ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे ये कुछ जो बेसिकली एक ये JLL करके एक इम्पोर्टेंट ये है अपना रियल एस्टेट है, उन्होंने अपना एक रिपोर्ट दिया है, रिसेंट रिपोर्ट है एकदम, कि भाई बेसिकली आप देखोगे ना तो इंडिया डेटा सेंटर में करीबन 27,000 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा नेक्स्ट 3 इयर्स में। जस्ट 3 साल में 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा
6 मिलियन स्क्वायर फीट ये बेसिकली जगह डेवलप करने में, बिकॉज इतनी रिक्वायरमेंट आएगी, बिकॉज डेटा इज टुडे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक प्राइमरीली आप देखोगे ना तो इससे भी बहुत सारी, और जब डेटा सेंटर बनता है तो डेटा ऑपरेटर्स है, उस लेवल की जो जॉब्स होती है वो भी बहुत जोर से क्रिएट होगी। तो जो एक नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड पास है, 10th स्टैंडर्ड पास है, जो एक छोटी सी जॉब ढूंढना चाहता है, उनके लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आएगा। और प्लस आज आप देखो फ्रेंड्स, तो कोई भी चीज अगर आपको प्रूव करनी है या बेसिकली एनालाइज करना है, डिस्कस डिबेट करना है, तो यू नीड डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, तो ही जाके आप कोई कंक्लूजन पे पहुंचते हो। सो दैट इज व्हाई ये एक काफी बड़ा गेम चेंजर होगा इन अ कंट्री लाइक इंडिया, व्हिच हैज सच ए ह्यूज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड एट द सेम टाइम द डेटा कंजम्पशन इज एक्सट्रीमली हाई। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फ्रेंड्स, कि भाई जो स्टार्टअप्स थे, तो स्टार्टअप्स को 2024 तक कंप्लीटली टैक्स फ्री स्टेटस दिया गया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स है ना, स्टार्टअप्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई सारे स्टार्टअप्स इंडिया में आते हैं। करीबन अभी आप देखोगे तो पिछले एक साल में ही 33,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए गवर्नमेंट में, और पिछले साल तो करीबन 42 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया। यूनिकॉर्न का मतलब उनका वैल्यूएशन $1 बिलियन, यानी कि 7,000 करोड़ रुपए का उनका वैल्यूएशन हुआ। यहाँ पे मैं एक ही चीज हाईलाइट करना चाहूंगा स्टार्टअप्स में, कि भाई बेसिकली मोस्ट ऑफ जो स्टार्टअप्स है वो आईटी सेक्टर रिलेटेड ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे जो एक पूरा एक एटीट्यूड आया है लॉपसाइडेड, कि भाई नहीं सब चीज आईटी से कनेक्टेड है, ये चीज ज्यादा योग्य नहीं है। यहाँ पे बेसिकली इवन स्टार्टअप्स में अगर आप देखें तो अगर कोई एक नॉर्मल कोचिंग क्लास भी खोल रहा है, अगर वो वहां पे लोकल के 25 लोगों को जॉब दे रहा है, तो उसको भी फंडिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए, बिकॉज हर कोई आईआईटी आईआईएम का बंदा नहीं होगा कि भाई वो अपना आईटी स्टार्टअप स्टार्ट किया और उसको बिलियंस ऑफ वैल्यूएशन मिल गए। प्लस स्टार्टअप में एक जो दूसरी चीज हमें समझनी है वो ये भी है कि वो वैल्यूएशन की जो गेम है ना, वो प्राइमरीली रिलेटेड है भाई इसके ऊपर। वैल्यूएशन की जो गेम है वो है अपना रेवेन्यू पे, नेट प्रॉफिट कंपनीज का नहीं होता है इतना। इसलिए आप देखोगे तो अपना इसका जो पेटीएम आया, तो पेटीएम में 2140 रुपए पे शेयर दिया गया, और आज उसका क्या प्राइस है, ड्रास्टिकली वो नीचे आ गया। व्हाई? द रीजन वाज कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है। कंपनी खुद कह रही है कि भाई 2030 में हम लोग शायद पॉजिटिव कैश फ्लो में आएंगे। सो इसलिए स्टार्टअप में वैल्यूएशन अकेले पे फोकस करना इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे, कि भाई ये बॉटम लाइन यानी सारे खर्चे निकालने के बाद इसमें प्रॉफिट बचता है क्या। बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टार्टअप्स में क्या होता है कि दे आर इन लॉसेज ओनली। जैसे अपना जोमेटो भी कह रहा है कि भाई हमें 3 से 4 साल लगेंगे प्रॉफिट में आने में। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो एंड इन्वेस्टर घुसता है अंदर, उसको लॉस आना तय है। सो इसलिए स्टार्टअप्स में उनको अगर आप टैक्स फ्री स्टेटस दे रहे हैं तो उसके साथ साथ उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फोकस किया जाए कि वो कब प्रॉफिट में आते हैं। दैट इज मोर आई कैन से वैलिड पैरामीटर rather than only focusing on basically valuation, because valuation में तो क्या रहता है कि valuation में always remember, वैल्यूएशन के अंदर तो जो ओवरऑल ग्रॉस इनकम होती है उस पे वैल्यूएशन आता है, और ग्रॉस इनकम पे वैल्यूएशन हमेशा हायर साइड पे लाना बहुत इजी रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आई है, बट इससे अनफॉर्चुनेटली एक रूटीन आम इन्वेस्टर को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बट एट द सेम टाइम जो ये स्टार्टअप्स के ओनर थे या बेसिकली अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स में जो बड़ा डीलिंग करते हैं, उनको ये पर्टिकुलर पॉइंट से बेनिफिट हुआ है कि जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो था उस पर जो सरचार्ज लगता है वो पहले 37.5% तक जाता था, उसको अभी 15% पे कैप कर, यानी 15% के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे सरचार्ज नहीं लगेगा। तो इससे सीधा जो बेनिफिट होगा, जिसने अनलिस्टेड शेयर ट्रांसफर किए, ये सब किए, उसको सीधा 16% का बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। स्टार्टअप इन्वेस्टर्स को इससे अच्छा खासा गेन मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सरचार्ज जो आप लेते हो, सरचार्ज में इन्होंने जो रिडक्शन किया है उससे स्टार्टअप इन्वेस्टर्स को काफी गेन है। ये एक डिमांड थी स्टॉक मार्केट तरफ से भी कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो अपना स्टॉक एक्सचेंज पे लगता है, स्टॉक मार्केट पे, म्यूचुअल फंड पे, उसको निकाल दिया जाए। वो काफी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। बिकॉज अगर आप अपना जो स्टॉक मार्केट देखोगे तो इसमें कई तरह के टैक्स लगते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है।
तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि भाई आप इसलिए ट्रेड कर रहे हो टैक्स भरने के लिए। सो यहाँ पे एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, बट खैर सरकार को पता नहीं वो डिमांड इतनी वैलिड नहीं लगी और उन्होंने बेनिफिट यहाँ दे दिया। जो ये सेगमेंट बेसिकली ऐसा है कि जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, अनलिस्टेड शेयर्स में जो डील करते हैं बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में, तो वो पर्सन को आप 37 से 15% टैक्स उसका घटाओगे तो उसको वो और रिच होगा, उससे कोई बेनिफिट बेसिकली एक इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर को नहीं जा रहा है। बट खैर गवर्नमेंट ने ये एक स्टेप लिया जो बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए डेफिनेटली यस इट्स अ वेलकम मूव। बजट में फ्रेंड्स ये एक चीज क्लैरिटी कर दी गई है कि भाई LIC सून विल बी अ लिस्टेड कंपनी और 31 मार्च के पहले मोस्टली LIC लिस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो LIC का वैल्यूएशन है फ्रेंड्स, वो वैल्यूएशन 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का किया जा रहा है। तो उसका अगर 10% भी हम डिसइन्वेस्टमेंट पकड़े तो 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए का IPO आएगा। तो LIC विल बी द लार्जेस्ट एवर IPO विच विल बी देयर। प्लस इसमें ऑलरेडी जो पार्लियामेंट में मॉडिफिकेशंस करने थे LIC एक्ट में, उसके लिए भी काम शुरू हो गया है, क्योंकि इसमें फॉरेन FDI का जो है उसको 20% तक FDI विल बी अलाउड इन LIC। सो इवन वहां पे भी एक अच्छा खासा एफर्ट डाला जा रहा है कि भाई कई सारे लोग प्राइमरीली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करें, बिकॉज एज फार एज LIC इज गोस इट इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ऑब्वियसली इसमें जब ये लिस्ट होगी तो रिटेल इन्वेस्टर्स को इसका काफी बेनिफिट होगा। और आज तो आई थिंक एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि LIC इज द आई थिंक टॉप 10 ब्रांड्स में ग्लोबली भी आता है, ऐसा किसी इंटरनेशनल ब्रांड कंपनी ने इसका वैल्यूएशन किया है, तो करीबन वहां पे भी ये टॉप 10 में इसका बेसिकली आने ये उनके कैलकुलेशन के हिसाब से ये टॉप 10 ब्रांड्स में भी आता है। सो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक फ्रेंड्स, और इससे एक वर्ल्ड इन्वेस्टर्स को भी ये मैसेज जाएगा कि इंडिया का लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो ये लिस्टेड है और इसमें एक आम आदमी अपना हार्ड अर्न पैसा लगा सकता है और लॉन्ग टर्म में उसको वेल्थ क्रिएशन होगा। हाउसिंग सेक्टर, यस, हाउसिंग सेक्टर में बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि रूरल हाउसिंग को काफी फोकस दिया गया है, बिकॉज रूरल जो है उसमें ही मैक्सिमम इंडिया आज भी रहता है फ्रेंड्स। हम कहते हैं कि भाई तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सिर्फ 14% GDP में कंट्रीब्यूट करता है, बट आप अगर उसका एम्प्लॉयमेंट पे देखो तो 62% ऑफ आवर पीपल स्टिल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। इसलिए बेसिकली हाउसिंग सेक्टर पे काफी फोकस है और यहाँ पे 48,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर आवास योजना पे, ताकि बेसिकली रूरल में जॉब क्रिएशन ज्यादा हो और जॉब क्रिएशन होने की वजह से रूरल इकोनॉमी में मोर डिमांड और कंजम्पशन क्रिएट आए। इससे ओवरऑल GDP बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। प्लस हाउसिंग एक बेसिक डिमांड है फ्रेंड्स, जब एक घर बनता है तो उसकी वजह से रेती, ईंट, कपची, बेसिकली लेबर सबकी डिमांड आती है। So it is an independent demand which creates demand for other things जैसे स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, लेबर, ऑटोमेटिकली इन सेक्टर्स में भी डिमांड क्रिएट होगी। So that is why housing sector is a very important sector जिसपे फोकस रहा है बजट में। फ्रेंड्स, जो पूरे बजट में 39 लाख करोड़ का एलोकेशन है उसमें मैंने कुछ मेन चीजें पकड़ी है। तो डिफेंस में, यस, नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। डिफेंस में फर्स्ट टाइम 3,85,000 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर करने का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे मेक इन इंडिया के मैक्सिमम डिफेंस की चीजें हम इंडिया में ही बनाएं और हम उसे एक्सपोर्ट करें। इनफैक्ट अभी आप देखोगे तो डिफेंस सेक्टर में अपना एक्सपोर्ट 37,000 करोड़ तक पहुंचा है, जो आगे जीरो हुआ करता था, एब्सोल्यूट जीरो। वी वर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ट्रेडिशनल आर्म्स एंड एम्यूनिशन में हम हमेशा इंपोर्ट करते थे, बट बेसिकली अभी वी आर फोकस, आवर फोकस हैज चेंज्ड एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ मेक इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट्स। दैट इज समथिंग वेरी वाइटल, वेरी क्रिटिकल। सेकंड, आप देखोगे जो सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर और जो क्रूड ऑयल में दी जाती है वो 3 लाख करोड़ की तो सब्सिडी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुअर सेगमेंट के लिए, मिडिल क्लास के लिए, कि जो सब्सिडीज प्राइमरीली आती है उस पर वो यहाँ इन एरियाज में यूज हो। एजुकेशन सेक्टर, यस, 1 लाख करोड़ रुपीस हैव बीन डिसाइडेड टू स्पेंड। इसमें एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज पे काफी फोकस किया गया है कि भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ज्यादा स्टेट्स में खुले, ज्यादा एरियाज में खुले, ताकि बेसिकली साइंटिफिकली फार्मर्स को सपोर्ट मिले एजुकेशन सेक्टर में। एक फार्मिंग और एग्रीकल्चर एक ही ऐसा सेक्टर था फ्रेंड्स कि जिसमें बेसिकली अगर आप देखोगे ना
तो एट द ग्रास रूट लेवल ऑल्सो, जब इवन कोरोना वायरस था और लॉकडाउन था, तो एग्रीकल्चर एक ही ऐसा सेक्टर था जिसने 3.4% का पॉजिटिव जीडीपी पॉजिटिव ग्रोथ रेट किया था। सो एग्रीकल्चर का 4% पे ग्रो होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमी 9% पे ग्रो करे। प्लस रूरल डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रोविजन दिया गया है। रूरल अगेन एज आई टोल्ड यू वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया लिव्स इन विलेजेस। और यस, हेल्थ केयर सेक्टर दैट इज अ वेरी वेरी वाइटल थिंग कि हेल्थ केयर में बेसिकली 86,000 करोड़ रुपए स्पेंड किया गया है। दैट इज समथिंग वेरी क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट कि जितना हम हेल्थ सेक्टर को ग्रो करें, डेवलप करें, उतना हमें बेनिफिट रहता है। फ्रैंकली स्पीकिंग फ्रेंड्स, मैं खुद एक सैलरीड पर्सन हूँ। बजट में एक जो काफी मिस आउट सा लगा वो ये था कि भाई कोई भी इनकम टैक्स के स्लैब चेंजेस नहीं हुए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एक बहुत बड़ा ये न्यूज था कि भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ जाएगा, 50,000 से बढ़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं आया। इवन हाउसिंग लोन में अगर कुछ डिडक्शंस बढ़ते तो सैलरीड क्लास को इससे डेफिनेटली बेनिफिट होता। यानी टू बी वेरी फ्रैंक हूँ, सैलरीड क्लास ये बजट में कंप्लीटली इग्नोर किया गया। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बिकॉज आप देखोगे कि भाई सैलरीड क्लास एक ही ऐसा सेगमेंट है जो टीडीएस कटवाता है, इनकम टैक्स भरता है, जीएसटी भरता है जब वो चीजें खरीदता है। सो कहीं ना कहीं बेसिकली सैलरीड क्लास में इतना जस्टिस नहीं हो पाया है बजट। थोड़े से मैंने हाइलाइट्स भी लिए हैं कि भाई करंटली हम कहाँ खड़े हैं। सी 2022 में ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन एक अपना जीडीपी 9.2% ग्रो करेगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम 8% भी कर देते हैं 2022 में, तो डेफिनेटली इट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट एंड वी कैन प्राउडली से दैट वी आर आउट ऑफ दिस कोरोना वायरस मेस। एक्सपोर्ट्स अपने हैं $301 बिलियन पे अपने एक्सपोर्ट्स है। सो दैट इज अगेन अ वेरी क्रिटिकल एंड एन इम्पोर्टेंट थिंग कि अच्छा खासा एक्सपोर्ट्स अपने पास बढ़ा है। आफ्टर दिस कोविड-19 एक्सपोर्ट्स ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो 634 बिलियन पे है, यानी आज हम 13 महीनों तक इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट इवन एक्सपोर्टिंग। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। द रीजन इज कि 1991 में ये फिगर सिर्फ 2.5 महीने पे आके रुक गया था। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं थे। टुडे वी आर हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ $634 बिलियन। सो ये एक फॉरेन इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देने वाला एक डेटा है। जीएसटी कलेक्शंस की बात करें फ्रेंड्स, तो पिछले 4 कंसेक्यूटिव मंथ से 1,30,000 करोड़ से भी ज्यादा हमारे जीएसटी कलेक्शंस रहे। सो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू ट्रैक इन अ बिग वे। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट है कि अपना जीएसटी कलेक्शन 1,30,000 करोड़ रहा है एंड दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग टू गो फॉर। सबके चलते फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इकोनॉमी के सामने काफी चैलेंजेस भी है। एक तो है कि भाई ये कोविड-19 या ओमिक्रॉन या कोई नया अगर वायरस का स्ट्रेन आता है तो दिस कैन रियली डिस्टर्ब द ग्लोबल इकोनॉमी, इट कैन डिस्टर्ब द इंडियन इकोनॉमी। और हम इसमें अच्छा खासा जो अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमी ट्रैक पे आ रही है, ये कहीं ना कहीं रुक सकती है। आज इन्फ्लेशन सबसे बड़ा सरदर्द बना है ग्लोबल लेवल पे। यूएस में अगर आप बात करोगे तो इन्फ्लेशन 7% है, हाईएस्ट लेवल सिंस 1982। यूके में 5.4% है, 20 साल में हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन जिस ढंग से बढ़ रहा है कहीं ना कहीं बेसिकली इससे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के काफी चांस है। और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो रिकवरी आती है वो कितनी सस्टेन होगी, ये एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। करेक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमें प्राइमरीली समझना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ओवरऑल इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा। आरबीआई पे प्रेशर आता है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। सो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें खास ध्यान में रख के चलना है फ्रेंड्स, एज फार एज risk factors are concerned. So this is something very vital, very critical. Finally friends, अगर हम conclusion की बात करें तो yes, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग फुट पे है, कोई डाउट नहीं, बट यहाँ चैलेंजेस भी उतनी ही है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो है वो है जॉब क्रिएशन फॉर इंडियन यूथ। ये बहुत ही ज्यादा वाइटल है फ्रेंड्स, कि अगर हम जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाए तो ये जो पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड का सॉन्ग है वो हमें बैकफायर होगा। Plus, financial planning for youth for all is very important.
फ्रेंड्स वो दिन गए कि भाई आप जैसे तैसे करके चला लेते थे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपको अपना फिनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली कैलकुलेट करना है कि इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है, आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को अब आप लाइटली नहीं ले सकते, बिकॉज कोविड ने ये चीज प्रूव कर दी कि अगर कोई अनहोनी आ जाती है, कोई ऐसी इवेंट आती है जो फोर्सीन नहीं होती है, तो अगर आप फिनेंशियली साउंड नहीं है तो उसमें और भी ज्यादा दिक्कत आती है। कोविड ने ये प्रूव किया कि जो लोग फिनेंशियली वीक थे उनको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड ऑल दिस, एज कंपेयर टू रिलेटिवली द स्ट्रॉन्गर सेक्शन। तो इसलिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को लाइटली लेने का दौर चला गया। एंड फाइनली फ्रेंड्स, देयर इज रिस्क फ्रॉम ग्लोबल इवेंट्स। जैसे ग्लोबली अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, so obviously that is a problem to get created. So with this friends, I complete my part of presentation and now we can go for question answer session. So जो भी आपको कुछ पूछना हो बजट के बारे में, जो भी आपका ओपिनियन हो, you can please share. Thank you very much, Aditya ji. Thank you. And I thank you on behalf of Association of Muslim Professionals for taking up your time and giving us an insights on the union budget. I'll start with a couple of my questions first. जैसे सर आपको मालूम है कि जो GSEC का yield है, it is at 10 years high. Yes, And yes. considering that कि it is almost at 6.5-6.7% है GSEC का yield. So do you think कि ये GSEC बढ़ रहा है, इस पे yield and everything, तो do you think कि इस पे equities market में कुछ impact होगा? यस, डेफिनेटली होगा सर। सी बेसिकली आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर 10 ईयर यील्ड बढ़ता है तो इक्विटी मार्केट्स कहीं ना कहीं नीचे आते हैं। और राइट नाउ अगर आप देखोगे ना तो पिछले 4 महीने का अगर आप ट्रेंड देखिए तो FIIs हैव बीन टोटली नेट सेलर्स। इनफैक्ट इन जनवरी 2022 में उन्होंने 39,000 करोड़ रुपीस निकाल लिए। 39,000 करोड़। मार्केट सिर्फ इसलिए बचा हुआ है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड फ्लोज जो काफी रेगुलरली आ रहे हैं। बट मैं खुद ये समझता हूँ कि 2022-23 में दैट दिस 2 years विल बी ऑफ एफडी वापस देखना पॉपुलैरिटी में आ जाएगी। एफडी है, प्रोविडेंट फंड है या कंपनी डिपॉजिट्स है। आप अभी भी देखो तो साहब अपना ये जो बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस की एफडी इवन टुडे इज गिविंग यू 7.85%। सो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, ये पक्का तय है। और इससे डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स प्रेशर में आएंगे। सी इक्विटी मार्केट्स में क्या हुआ है कि आप पिछले 3-4 महीने की रैली देखें ना तो वो कंप्लीटली लिक्विडिटी ड्रिवन थी। इट वाज नॉट फंडामेंटल ड्रिवन, इट वाज लिक्विडिटी ड्रिवन। ये सारा पैसा कहाँ से आया? तो यूएस फेडरल रिजर्व ने बेसिकली $2.5 ट्रिलियन प्रिंट किए। अब यूएस में इंटरेस्ट रेट ही 0.25% है, 0 to 0.25। तो ये पैसा वहां तो रहेगा नहीं। तो ये पैसा बेसिकली FII के थ्रू घूम फिर के ये पैसा एमर्जिंग स्टॉक मार्केट्स में आया और इससे हमारे मार्केट्स ने इतना रैली किया। सो अब क्या होगा कि जब ये लोग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की बात ऑलरेडी कर रहे हैं और मार्च में तो मैं श्योर हूं कि ये लोग 0.25 बेसिस तो बढ़ाएंगे ही। इनफैक्ट कल ही आप देखिए तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बिगैर कहे 0.25 से 0.50 कर दिया इंटरेस्ट रेट। सो बेसिकली यहाँ पे कहीं ना कहीं है ना 2022-23 will be a time where interest rates will go up and it will definitely affect equity markets. Okay. तो इसके ऊपर ही वही नेक्स्ट सवाल पे जो मैं पूछ रहे थे कि यूएस में फेड ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है, जैसे यूके ने किया है, तो उसका इम्पैक्ट हाउ डज इट इम्पैक्ट आवर इंडियन मार्केट ओवरऑल लेवल पे? हाँ श्योर, नॉट अबाउट द इक्विटीज बट ऑल द ओवरऑल लेवल। सर ओवरऑल आप ये देखिएगा कि आरबीआई ने भी आज क्या किया है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड दूं। यूएस और यूरोप है ना, दे फॉलो अ पॉलिसी कॉल्ड ऑफ टारगेट बेस्ड इन्फ्लेशन अप्रोच। यानी उनका लॉजिक क्या होता है कि हमें इन्फ्लेशन का एक टारगेट रखना है और उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स को सेट करना है। वहां पे उनका इन्फ्लेशन टारगेट नॉर्मली 2 से 2.5% होता है, लेकिन वहां हुआ क्या है कि इन्फ्लेशन 7 और 5% हो गया है। सो उनके सेंट्रल बैंक्स पे ये बहुत ही प्रेशर है कि भाई वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए इसको घटाने के लिए और अल्टरनेटिवली दूसरे रास्ते ढूंढे इन्फ्लेशन घटाने में। अब इंडिया का सीन आप देखो ना तो ये एक्चुअली 2014 में जब रघुराम राजन और उर्जित पटेल ये दोनों का कॉम्बिनेशन था तो ये लोग ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी लेके आए कि हम टारगेट बेस्ड इन्फ्लेशन पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। और इसमें आरबीआई ने स्टैंड ये लिया
कि भाई अपना 4% बेस इन्फ्लेशन होगा ±2%, यानी नीचे में 2% इन्फ्लेशन चलेगा, लेकिन ऊपर में 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आज आप देखोगे ना साहब, तो अपना इन्फ्लेशन 5.59% है। और जैसे ही मैंने एक जो चीज ऑब्जर्व की इतने सालों में, कि जैसे ही फरवरी मार्च अप्रैल में आता है, यानी समर बैठता है ना, अपना इन्फ्लेशन जोर से भागता है फॉर वॉट एवर रीजन, पर ये होता ही है। तो जैसे ही इन्फ्लेशन अपना 6.5-7% जाएगा ना, आप देखना आरबीआई पे भी इतना ही प्रेशर आएगा कि भाई यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। तो जब ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, सो दैट अफेक्ट्स द इकोनॉमी, बिकॉज आपका मंथली ईएमआई जो हाउसिंग लोन है, कार लोन है, कैपिटल गुड्स लोन आप लेते हैं, उस पर आपका ईएमआई बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से इकोनॉमी में डिमांड एंड कंजम्पशन घटने का रिस्क रहता है। भले होता क्या है सर कि कंपनी जब इकोनॉमी बहुत हीट हो जाती है, मीन्स हाई डिमांड हो जाता है, और लिक्विडिटी का भी अभी मार्केट में लिक्विडिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो कभी कभी टू सी के पीपल सेव द मनी रेदर देन स्पेंड, तो that also make RBI to increase the interest rate. सर इसमें एक्चुअली आप देखो ना, तो जब इसमें होता क्या है ना कि सर जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, तो आपकी बात सही है कि बहुत सारे लोगों का सेविंग बढ़ता है, बिकॉज अपने वहाँ एफडी ऐसे भी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ये चोट कहाँ पहुंचाती है कि आपके एफडी पे रेट बढ़ा तो ऑब्वियस लोन पे भी बढ़ेगा ना, बिकॉज वो दोनों का डिफरेंस ही बैंक की इनकम है। तो यस, आपकी बात सही है कि अगर एफडी ज्यादा ब्याज देगी तो मैं बहुत सारा पैसा एफडी में रखूंगा, लेकिन प्रॉब्लम बैंक को कहाँ आती है कि सामने वो हाई रेट पे लोन देने वाले कम हो जाते हैं। इनफैक्ट आपको ताजुब होगा कि अभी भी दो इंटरेस्ट रेट्स मेरे 18 साल के स्टॉक मार्केट के करियर में, मैं ये फर्स्ट टाइम एफडी रेट्स 5.15 देख रहा हूँ और हाउसिंग लोन 6.5 देख रहा हूँ। लेकिन तो भी सर, तो भी एक चीज समझने जैसी है कि लोन लेने में लोग डर रहे हैं, तो भी बिकॉज उसको आउटलुक अनसर्टन दिखता है। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर एफडी सपोज करें कि 2022 दिसंबर में एफडी आपको 7% दे रही है या 7.5 दे रही है, तो जाहिर सी बात है लोन आपका 8 हो गया, 8 या 8.5 होगा। तो जब 6% पे लोग डर रहे हैं, तो 8.5-9 पे कौन लेगा? बिकॉज सर गवर्नमेंट जो भी कहे, एक फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, ये अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई ग्रास रूट लेवल पे उतनी रिकवरी नहीं आई है जितनी की बताई जा रही है। सी हुआ क्या है ना कोविड में, टू बी वेरी फ्रैंक, पूरी इकोनॉमी दो हिस्सों में बट गई। एक, टू बी वेरी फ्रैंक, जिसको कंप्यूटर आता था, यानी जिसका काम आईटी से हो जाता था, तो वो पर्सन की इनकम बढ़ गई। रीजन है उसका काम चलता रहा और खर्चे घट गए, बिकॉज वो घर से बाहर निकला ही नहीं। आप कंपनीज में भी देखेंगे ना, तो ऑपरेशनल कॉस्ट ड्रास्टिकली घटा, उसकी वजह से प्रॉफिट्स बढ़ा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस बहुत बढ़ गया, लेकिन उसके सामने जो बेसिकली आम आदमी था, जो वीकर सेक्शन था, जिसका काम फिजिकल मीट पे चलता था, वो कंप्लीटली बेचारा फंस गया, बिकॉज उसका काम ही बंद हो गया। सो यहाँ पे ये जो अप्रोच एक हमें लेना है ना, वो इट हैज टू बी अ 2-point स्ट्रेटजी, वन स्ट्रेटजी फॉर द क्वालिफाइड एंड अदर स्ट्रेटजी फॉर द वीकर। तो भी जाके हम बेसिकली वो गैप को कम कर सकेंगे। करेक्ट करेक्ट सर, मैंने आप बोलना चाह रहे हैं के शेप रिकवरी की बात हो रही है, द रिचर आर गेटिंग रिचर वेदर द पुअर आर गेटिंग पुअर, यस काइंड ऑफ। सर कुछ क्वेश्चंस है Q&A सेक्शन में। एक क्वेश्चन है मुश्ताक खान का आपका। इनका एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्चुअल परसेंटेज ऑफ बजट अमाउंट यूटिलाइजेशन एट ग्राउंड लेवल, हाउ गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द रेशियो? सर बेसिकली सी परसेंटेज तो डिटरमाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसको इम्प्रूव करने का डेफिनेटली ये तरीका है कि जो भाई ग्राम पंचायत लेवल है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं काफी विलेजेस में गया हूँ कि वहाँ का जो सरपंच होता है ना, इफ ही इज मेड अकाउंटेबल, क्योंकि मैं खुद एक गाँव में जाता हूँ, वहां पे क्या होता है, पैसा जरूर आता है बट वहाँ स्ट्रीट लाइट आज भी नहीं है, तो फिर वो पैसा गया कहाँ? टू बी वेरी फ्रैंक, तो अगर वो लास्ट मैन इन द क्यू जो है, अगर उसको आंसरेबल बनाया जाए कि भाई ये पैसा तेरे तालुका में आया, तो ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, विद प्रूफ आप हमको दो, ऑडिट उसका हो, तो डेफिनेटली ग्रास रूट लेवल पे चीजें इंप्रूव हो सकती है। सी हमारे वहाँ अनफॉर्चुनेटली इतने सालों में यही हुआ है, वी आर वेरी गुड इन प्लानिंग बट वेरी वीक इन इम्प्लीमेंटेशन, जबकि चाइना का वही डिफरेंस है, चाइना इज एक्सट्रीमली गुड इन इम्प्लीमेंटेशन। द सेकंड क्वेश्चन एक है एनोनिमस है, उनको पूछना है कि प्राइसेस ऑफ गोल्ड क्या इंडिकेट करते हैं, तो हाउ डज द प्राइसेस ऑफ गोल्ड इंडिकेट? See, basically, prices of gold indicates uncertainty and fear at the global level.
सी ऑलवेज रिमेंबर कि जो गोल्ड होता है, गोल्ड का रिलेशन है ना स्टॉक मार्केट, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा और वर्ल्ड इकोनॉमी से उल्टा होता है, रिवर्स होता है। यानी जब भी ग्लोबल लेवल पे कोई प्रॉब्लम आती है या आने वाली होती है तो गोल्ड बढ़ने लगता है, जब थिंग्स नॉर्मल होंगे तो गोल्ड घटने लगेगा। आप एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर जब कोविड के पहले गोल्ड था 40,000 रुपए बराबर अपना 10 ग्राम, कोविड आया गोल्ड गया 50,000 रुपए, सेंसेक्स 42,000 से क्रैश हुआ 25,000 पे नीचे आ गया, और बाद में गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बनाया 57,000 का। अब डेट के साथ आप चेक कर सकते हैं कि 12 अगस्त 2020 को जब रशिया ने ये कहा फर्स्ट टाइम कि भाई हम वैक्सीन ला रहे हैं, एक ही दिन में गोल्ड 8,000 रुपए क्रैश कर गया था। तो आप इस गोल्ड का एक सिंपल चीज समझिएगा कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमी नॉर्मल चलती है ना तो गोल्ड नीचे आ जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो गोल्ड ऊपर जाता है। that means कि पब्लिक को sentimentally पब्लिक is more attached to the gold Yes, as a physical asset, yes कि sir, कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो शायद उसको यूज कर सकते हैं। 100% बिकॉज गोल्ड इज मोस्ट लिक्विड एसेट आफ्टर कैश। उसका मेन बेनिफिट ये है कि आप उसको कभी भी बेच सकते हो। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है जैसे मोहम्मद हनीफ से कि जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कैपेक्स का इम्प्लीमेंटेशन इज ओनली सक्सेसफुल व्हेन देयर इज अ लैंड एक्विजिशन इज डन प्रॉपर्ली, क्योंकि हमारे इंडिया में लैंड एक्विजिशन में अगर कुछ हो गया यानी प्रॉब्लम्स हो जाते, कोर्ट के केसेस हो जाते, तो हाउ डू यू थिंक ये जो गवर्नमेंट ने मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह के इम्प्लीमेंटेशन प्लस इतने सारे ये किया है, तो हाउ डू यू थिंक कि ये लैंड एक्विजिशन एंड एवरीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड ऑन दैट? सर सी लैंड एक्विजिशन है ना सर, टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं कहूँ ना, हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा ही है। बिकॉज सी क्या होता है ना कि गवर्नमेंट जब लैंड लेना चाहती है वो कहती है हमने बेस्ट डील दिया, और लेने वाला कहते हैं भाई मेरा डील कम रहा। सो टू बी वेरी फ्रैंक उसमें इट इज नॉट अ वन पॉइंट सॉल्यूशन, बट उसमें एक ही चीज है कि जितना भी वो जो लोकल लेवल पे लोग अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज ट्रांसपेरेंट रहे और बेसिकली एक जो वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई विन विन सिचुएशन, कि भाई जिसने लैंड लिया उसको भी बेनिफिट हो और जिसका लैंड गया उसको भी प्रॉपरली रिहेबिलिटेट किया जाए, देन ओनली वन कैन प्राइमरीली डू इट, अदरवाइज इट इज ऑलवेज व्हाट वी कैन से डिबेटेबल सिचुएशन। ओके, I will hand over, Ehsan bhai, I will hand over to, thank you Aditya ji, we have done with the question Q&A section. I'll hand over to Ehsanullah Saab for the vote of thanks. Thank you, sir. Just I have two questions with you, sir. Before our vote of thanks, just I'm asking you, just PPP जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसके लिए बजट में क्या अभी नया चीजें लाई गई हैं, और दूसरा चीज है डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इसके लिए क्या बजट में ऑप्शंस हैं? सर ये दो मेरे क्वेश्चंस थे। हाँ सर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे टू बी वेरी फ्रैंक नहीं इतना कुछ खुल के नहीं आया है, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक आपसे कहूँ ना, पीपीपी मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं गया है जितना इसको एनविसाज किया गया था। बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक अगर आप देखेंगे ना साहब, तो लास्ट बजट में लास्ट बजट में एक क्लियर कट आया था कि भी इंडिया में जितने भी रेलवे स्टेशन है उसमें पीपीपी मॉडल है, तो एनी प्राइवेट कॉर्पोरेट कैन अडॉप्ट अ स्टेशन, कैन रिवैम्प इट एंड कैन चार्ज आल्सो, लेकिन फिर भी एक भी कॉर्पोरेट एप्लीकेशन नहीं आई थी। सी कॉर्पोरेट को हमेशा क्या इश्यू होता है ना कि गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ करे तो अपना पैसा अटक जाता है, मतलब फॉर वॉट एवर रीजन आप डाल तो दोगे बट वो निकलेगा नहीं, तो इसलिए वो लोग कतराते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। सेकेंड एक जो चीज है सर कि भाई डिजिटलाइजेशन में एजुकेशन में गवर्नमेंट ये कह रहा है कि भाई हर, जैसा भी एग्जांपल मेरे कुछ एक अनाउंसमेंट आई है कि भाई हर क्लासरूम में 1 to 12th में रूरल एरियाज में टेलीविजन ये लोग बढ़ाने वाले हैं, हर क्लासरूम में होगा कि भाई बच्चे को चैनल से भी सिखाया जाए। बट मैं अगर आपको सच कहूँ ना सर, से डिजिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज मैंने बहुत सारे वेबिनार ये इसमें लिए हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के, तो व्हाट आई फाउंड इसने कि जो फिजिकल में आप उनको अटेंटिव रख के सिखा सकते हो ना, वो डिजिटल में नहीं आता है। डिजिटल में अनलेस कि बच्चा खुद सिंसियर है, टू बी वेरी फ्रैंक, बाकी 80% लोग जस्ट अटेंडेंस के लिए बैठते हैं, 80 क्या 95% सिर्फ ओनली फॉर अटेंडेंस। तो और स्पेशली सर मेरा एक मानना है कि भाई इंडिया इज अ कंट्री वेयर वी हैव ह्यूज लेबर, तो अगर हर चीज हम ये डिजिटलाइजेशन पे करने जाएंगे ना तो इसमें भी बैकफायर होगा एक्चुअली। सी हमें एक चीज समझने की भाई यूएस यूरोप में इसलिए ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर है बिकॉज वहाँ लोग ही कम है, तो इसलिए वहाँ रोबोट चाहिए, अपने को थोड़ी रोबोट चाहिए, अपने इतने सारे लोग तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को एक्चुअली क्या कहते हैं ना कि भाई ग्रासरूट लेवल पे थोड़ा सा मतलब वी हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल।
हम डायरेक्ट यूएस को कॉपी करने जाएंगे ना तो उसमें नुकसान ज्यादा होगा फायदे से। ओके, थैंक यू। आज के जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और स्पेशली हमारे जो स्पेशल इनवाइटी हैं यहाँ आज के वेब टॉक करने वाले डॉक्टर आदित्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने इतने इनोवेटिव आइडियाज और अपने एक्सप्रेस किए हमको, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आपका। और हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर शेखर साहब और दूसरे लोग, जितने भी लोग इसमें शरीक हैं, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, Thank इट you, वाज sir. माय प्लेजर, इट वाज माय आदित्य जी, प्लेजर। एक लास्ट क्वेश्चन है, आप ऑफिस जा रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं अभी सर, मैं तो गुजरात में ही हूँ, सूरत में ही हूँ, अभी भी हमारा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। चलो, तो फिर जब आप आएंगे तो मुलाकात करेंगे भी किसी। पक्का पक्का सर, इंशाल्लाह पक्का। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।